لا الہ الا اللہ۔ زمان و مکان کے ظہور سے پہلے، اس لمحے سے بھی پہلے جب آدم علیہ السلام کی روح کو مٹی میں پھونکا گیا، ایک ایسی دنیا موجود تھی جسے صرف اللہ جو سب سے جلیل و بلند ہے جانتا ہے۔ اس غیب کے عالم کی بلندیوں میں جو ہر آنکھ سے پوشیدہ اور ناقابل بیان رازوں میں ڈھکی ہوئی تھی، ایک حقیقت موجود تھی جسے لوح محفوظ کہا جاتا ہے، یعنی محفوظ اور مقدس تختی۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ یہ کوئی عام تختی یا کاغذ اور صفحات پر مشتمل کتاب نہیں، بلکہ ایسا مخلوقی وجود ہے جو مادیت کے ہر تصور سے ماورا ہے۔ احادیث اور تفاسیر میں اسے ایک نورانی آسمانی تختی قرار دیا گیا ہے، جس پر اللہ کا ابدی فیصلہ لکھا گیا ہے۔ ہر واقعہ، ہر زندگی، ہر موت، ہر پوشیدہ سرگوشی اور کائنات کی ہر حرکت، چاہے سورج کی کرن میں اڑنے والے سب سے چھوٹے ذرے کی پرواز ہو یا کہکشاؤں کا دور دراز کائنات میں بکھر جانا، سب کچھ اس میں تحریر ہے۔ لوح محفوظ قلم کی تخلیق سے پہلے بنایا گیا، اور اسی تختی پر قلم نے اللہ کے حکم سے ہر چیز کی تقدیر لکھی۔ لوح محفوظ کی تخلیق کلاسیکی روایات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کو ایک چمکتی دمکتی موتی کی مانند تخلیق فرمایا۔ اس کا مادہ نور ہے، اس کے کنارے زمرد سے مزین ہیں، اور اس کے ستون کائنات کی حدوں سے بھی ماورا ہیں۔ عظیم محدث ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ابی داؤد حدیث 4700 میں فرمایا، بے شک سب سے پہلی چیز جو اللہ نے پیدا کی وہ قلم تھا۔ پھر اس سے فرمایا لکھ۔ اس نے کہا اے میرے رب کیا لکھوں؟ اللہ نے فرمایا ہر وہ چیز لکھ جو قیامت تک پیش آئے گی۔ لیکن بعض روایات اور اسلامی تصوف کی کتب کے مطابق قلم سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کو تخلیق فرمایا، جسے تختی تقدیر بھی کہا جاتا ہے، تاکہ قلم اس پر ہر چیز کو تحریر کرے۔ ایک مختصر اطلاع، ہماری تمام ویڈیوز اب اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں یوٹیوب پر دستیاب ہیں۔ آپ انہیں ہمارے پلے لسٹ سیکشن میں دیکھ سکتے ہیں، جہاں سب ویڈیوز آپ کی سہولت کے لیے جمع کی گئی ہیں۔ چلیے اب آگے بڑھتے ہیں۔ مقدس تختی کی وضاحت ابن کثیر اپنی کتاب تفسیر القرآن العظیم میں بیان کرتے ہیں کہ لوح محفوظ کا حجم اور حسن انسانی فہم سے ماورا ہے۔ اس کی روشنی سورج اور چاند دونوں کی روشنی سے زیادہ درخشاں ہے۔ اعلیٰ درجہ کے فرشتے اس کی حفاظت پر مامور ہیں، مگر اس کے مکمل مضامین کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ یہ ماضی اور مستقبل کی قید سے آزاد ہے، کیونکہ اس پر ہر وہ تقدیر لکھی گئی ہے جو وقت کی تخلیق سے بھی پہلے مقرر ہو چکی تھی۔ امام قرطبی اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اسے محفوظ اس لیے کہا جاتا ہے کہ نہ جنت، نہ فرشتے اور نہ کوئی اور مخلوق اس کے علم تک پہنچ سکتی ہے سوا اس کے جسے اللہ اجازت دے۔ جو کچھ انبیاء کو دیا جاتا ہے وہ وحی کے ذریعے ہوتا ہے، اور جو کچھ فرشتوں کو عطا کیا جاتا ہے وہ ان کی ذمہ داریوں کے مطابق ہوتا ہے۔ نیک علماء سے منقول ہے کہ اس کے گوشے اللہ کی رحمت کی بنیادوں پر قائم ہیں، اس کے ستون نور کے پردوں میں جا کر محو ہو جاتے ہیں، اور اس پر انسانوں، دنیاؤں، قوموں، بادشاہوں، زمانوں اور ابدیتوں کی تقدیریں لکھی ہوئی ہیں۔ ہم اپنی پچھلی ویڈیوز میں قلم القلم کی تخلیق، اللہ نے کائنات کیوں بنائی، اللہ کی پہلی مخلوق، 7 دروازے اور جہتیں اور کائنات کی تخلیق سے پہلے اللہ کہاں تھا، یہ سب موضوعات بیان کر چکے ہیں۔ اگر آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھیں تو ضرور دیکھیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں لوح محفوظ کا ذکر سورہ البروج آیت 21 سے 22 میں یوں آتا ہے، بلکہ یہ ایک باعظمت قرآن ہے جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ یہ آیات اس بات کی تصدیق کرتی ہیں کہ اللہ کا کلام اور اس کا ابدی فیصلہ لوح محفوظ میں محفوظ ہے، جس میں نہ کوئی کمی ہے، نہ زیادتی، نہ تغیر، اور نہ ہی اسے مٹایا جا سکتا ہے۔ ایک اور آیت سورہ الرعد 13:39 میں ارشاد ہوتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جو چاہے برقرار رکھتا ہے، اور اسی کے پاس ہے ام الکتاب۔ مفسرین خصوصاً امام طبری کے مطابق ام الکتاب سے مراد بھی لوح محفوظ ہی ہے، جو تمام تقدیروں کا ماخذ اور سرچشمہ ہے۔ تقدیر الہی اور قلم کی تحریر۔ اللہ تعالیٰ نے قلم کو نور سے پیدا فرمایا اور اسے حکم دیا کہ لوح محفوظ پر ہر وہ چیز لکھ دے جو پیش آئے گی۔ لکھ
हर चीज की मिकदार, जो कुछ था, जो कुछ है और जो कुछ क़यामत तक होगा। चुनांचे कलम ने अपनी ड्यूटी अंजाम देना शुरू की और आसमानों और जमीन की तख्लीक से 50,000 साल पहले तमाम मखलूक की तकदीरें तहरीर किए। इसका जिक्र सही मुस्लिम हदीस 2653 में इस तरह आया, अल्लाह ताला ने आसमानों और जमीन की तख्लीक से 50,000 साल पहले तमाम मखलूक की तकदीर को लिख दिया था और उस वक्त उसका अर्श पानी पर था। ये क्या महफूज रखता है? लोह महफूज गैब के राजों यानी आलमुल गैब को अपने अंदर समोए हुए है। इसमें दर्ज है हर उस रूह का नाम जो कभी तख्लीक हुई, हर इंसान की उम्र, हर दिल की धड़कन, हर सांस, हर आंसू और हर मुस्कुराहट, हर बारिश का कतरा जो गिरता है, हर बीज जो उगता है, हर पत्ता जो झड़ता है, सल्तनतों का उरूज व जवाल, अंबिया और रसूलों का आना, कौमों की आजमाइशें, रोज़े क़यामत, जन्नत वालों और जहन्नम वालों के नाम, कुछ भी ऐसा नहीं जो पहले से उसमें तहरीर न किया गया हो। सूफिया का लौह महफूज पर गौर व फिक्र इस्लाम के औलिया और सूफी मशाइख ने इस हकीकत के बारे में अदब और खुशू के साथ गुफ्तगू की है। उनके लिए लौह महफूज अल्लाह के वसी और नाकाबिल रसाई इल्म की अलामत है, तकदीर और किस्मत का खजाना जो बंदे को उसकी मुकम्मल वाबस्तगी अल्लाह की मशीयत के साथ याद दिलाता है। इमाम गजाली अपनी किताब अहया उलूमुद्दीन में लिखते हैं कि अल्लाह के मुकर्रब बंदों के दिल बाज़-औक़ात आलम मिसाल में लौह महफूज के अक्स देखते हैं। तकदीर के झलकते हुए मुनाजिर जो ख्वाबों, रूहानी मुशाहिदात या गहरी मार्फत के लम्हात में जाहिर होते हैं, वो उसे क़ज़ा इलाही का आईना करार देते हैं। एक अज़ल से पहले का सहीफा जिसमें सिर्फ ज़ाहिरी वाक़यात ही नहीं बल्कि हर दिल की सबसे छिपी हुई कैफियतें भी लिखी हुई हैं। और फिर भी अल्लाह के करीब तरीन बंदे भी उसके आखिरी राजों तक रसाई हासिल नहीं कर सकते। लौह महफूज और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इब्तिदाई उलमा और सूफी मशाइख ने रिवायत किया है कि लौह महफूज पर सबसे पहले दर्ज होने वाली चीजों में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें मुबारक था, जो अल्लाह के इसम के साथ रोशन लिखा हुआ था, जैसा कि हदीस में मज़कूर है। जब अल्लाह ताला ने कलम को पैदा किया तो उसे हुक्म दिया कि जो कुछ पेश आएगा सब लिख दे, और जो सबसे पहले उसने लिखा वो ये था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये रिवायत कंजुल उमाल और इब्तिदाई रिवायात से मनकूल है। ये इस बात की दलील है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकत वक्त से पहले तकदीर की अज़ली किताब में महफूज और अल्लाह के इल्म में मुकर्रर हो चुकी थी। अब्दी मुकद्दर के दफातर में जगमगाता हुआ एक गौहर, मुकद्दस तख्ती का क़यामत के दिन किरदार। क़यामत के दिन कहा गया है कि लौह महफूज में दर्जबाज फैसले ज़ुहूर पजीर होंगे। इंसानों की तकदीरें, अमाल नामे, कौमों की किस्मत, वो सब कुछ सामने आ जाएगा जो पहले से तहरीर किया गया था। फरिश्ते जो तकदीर के अमीन हैं यानी अलकातिबून, इसी से अपने अहकामात वसूल करते हैं और अल्लाह की मर्जी को मुकम्मल पैमाने के मुताबिक नाफिज करते हैं। फरिश्ते किस तरह अहकामात वसूल और नाफिज करते हैं? फरिश्ते जिन्हें मुकस्समात अमरा कहा जाता है, अल्लाह के हुक्म से लौह महफूज में मौजूद फैसले नाफिज करते हैं। सूरह ज़रियात आयत 4 में है, और कसम है उनकी जो अहकाम तकसीम करते हैं। इब्ने कसीर बयान करते हैं कि ये फरिश्ते लौह महफूज से अहकामात लेकर दुनिया में अल्लाह का हुक्म नाफिज करते हैं। लैलतुल क़द्र की रात तकदीर की तकसीम। हर साल शब कदर की रात लौह महफूज में से एक हिस्सा फरिश्तों पर जाहिर किया जाता है ताकि आइंदा साल के लिए उसे नाफिज किया जा सके। सूरह दुखान आयत 4 में है, इस रात हर हिकमत वाला फैसला लिख दिया जाता है। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वजाहत के मुताबिक इस रात आइंदा साल में होने वाले तमाम वाक़यात, पैदाइश, अमवात, रिज्क, मुसीबतें लौह महफूज से लेकर फरिश्तों के सुपुर्द की जाती हैं। ये रात लौह महफूज में मौजूद अटल तकदीर और दुनिया में वाक़यात के ज़ुहूर के दरमियान एक पुल की हैसियत रखती है। फरिश्तों के रजिस्टर जिन्हें सहफ़ अल मुल्क कहा जाता है, अगरचे लौह महफूज खुद गैर मुतगय्यर और महफूज रहती है। साल भर के अहकामात फरिश्तों के सहीफों में लिखे जाते हैं। मुल्कुल मौत के सुपुर्द उन लोगों के नाम किए जाते हैं जिनकी रूह कब्ज करनी हो।
रिज्क के फरिश्ते उनके नाम लेते हैं जिन्हें मालदार या तंग दस्त किया जाना हो। मुसीबत और बरकत के फरिश्ते उन अहकामात को वसूल करते हैं जिन्हें वो नाफिज करने पर मामूर होते हैं। ये अहकामात लौह महफूज से लिए जाते हैं, मगर उन्हें जिस तख्ती में लिखा जाता है उसे उलमाए सालाना तकदीर की लोह यानी लोहे सानवी या सहाफल मुल्क कहते हैं। अटल और मशरूत तकदीरें ये लोह महफूज में लिखी हुई अबदी और नाकाबिल तगय्युर तकदीर होती है जो बदली नहीं जा सकती। ये अल्लाह के उस इल्म की नुमाइंदगी करती है जो यकीनी तौर पर वक़ू पजीर होना है। क़ज़ा, मुअल्लक़, मशरूत, तकदीर। कुछ मामलात मशरूत लिखे जाते हैं और वो फरिश्तों के सहीफों में न कि लोह महफूज में बाज़ अमाल की बुनियाद पर बदले जा सकते हैं। दुआ, सदका, नेक अमाल। जामे तिर्मिज़ी हदीस 2139 में है, तकदीर को कुछ नहीं टालता सिवाय दुआ के। ताहम ये तब्दीली भी अल्लाह के इल्म में पहले से मौजूद होती और लोहे महफूज में लिखा होता है, यानी तकदीर में तब्दीली का अमल भी अज़ली तकदीर का हिस्सा होता है। लोह महफूज और दूसरे रजिस्टरों में फर्क। लोह महफूज अल्लाह का अटल, अज़ली और अब्दी दफ्तर है जिसमें हर चीज लिखी है और उसमें कोई कमी बेशी मुमकिन नहीं, जबकि फरिश्तों के सहीफे लोह महफूज से अहकामात लेकर वक्तन फवक्तन नाफिज करते हैं और बाज मामलात उनमें मशरूत होते हैं। लोह महफूज की फिक्री गहराई। लोह महफूज ये साबित करती है कि अल्लाह का इल्म मुतलिक और कामिल है। ये अल्लाह की मशीयत और मखलूक के दरमियान मुकम्मल हम आहंगी की अक्कासी करती है। ये तकदीर और इख्तियार पर होने वाले इलाहियाती मुबाहिस को यूं वाज़े करती है कि अगरचे नताइज पहले से तयशुदा हैं, मगर इंसान के एमाल अल्लाह के इल्म में है बगैर किसी जबर के। इब्न तैमिया फरमाते हैं, लोह महफूज के फैसले अल्लाह के अज़ली इल्म का मजहर है। इंसान के अफ़आल इख्तियारी हैं, मगर अल्लाह के लामहदूद इल्म में पहले से मालूम, क्योंकि उसकी वसात से कुछ बाहर नहीं। लोह महफूज इस्लामी फ़लसफ़े में। इस्लामी फ़लसफ़ी जैसे हज़रत अल फ़ाराबी और इब्न सीना ने लोह महफूज को इस्तिआरे के तौर पर बयान किया। उसे कहा अक्ल अव्वल यानी अल्लाह, जो कि वाजिबुल वजूद है और कसरत मखलूक के दरमियान वास्ता, ऐसा अज़ली नमूना जिसमें हर मुमकिन शय के सांचे और सूरतें मौजूद हैं। अगरचे ये नजरियात बाज़ उलमा के नज़दीक मुतनाज़े रहे, लेकिन ये लोह महफूज की इस्लामी फिक्री तारीख में गहरी जड़ों की गवाही देते हैं। रूहानी तजुर्बात और रिवायात। बहुत से औलिया और सूफी मशाइख ने दावा किया कि उन्होंने कश्फ और रूहानी मुकाशफे में लोहे महफूज के अक्स या झलकियां देखें। शेख अब्दुल कादिर जेलानी रिवायत करते हैं, कश्फ के लम्हे में लोह महफूज पर लिखे फैसले पाकीज़ा दिल वाले सालिक के दिल पर जाहिर किए जाते हैं। लोह महफूज के बातनी अस्मा वल क़ाब, अगरचे उमूमी तौर पर उसे लोह महफूज कहा जाता है, मगर इस्लामी रिवायत में मुख्तलिफ मौके पर मुख्तलिफ अलामती नामों से उसे याद किया गया है। लौही आज़म। कुछ इब्तिदाई सूफियाना और तफसीरी मतून में उसे आला कायनाती सहीफा कहा गया। कशीरी ने अपनी रिसाला कशीरिया में इसे इस आला तरीन माबादुत तबीई हकीकत के मुतरादिफ करार दिया है। अमल किताब। कुरान ने खुद अमल किताब का जिक्र सूरह अज़-ज़ुख़रफ़ 43:4 में यूं फरमाया, और बेशक वो हमारे पास अमल किताब में है, बुलंद व बरतर और हिकमत से भरा हुआ। क्लासिकी मुफस्सिरीन जैसे इब्न जरीर तबरी और इब्न कसीर ने उम्मुल किताब को लोह महफूज का एक और नाम करार दिया, जो हर नाजिल शुदा किताब और तकदीर का सरचश्मा है। किताब मकनून। कुरान में सूरह अल वाक़िया 56 से 78 में फरमाया, बेशक ये एक इज्जत वाला कुरान है, एक महफूज किताब में। तफसीर बेज़ावी के मुताबिक ये गैब की दुनिया में छुपी हुई गैर मुबद्दल किताब की तरफ इशारा है, जो फिर लोह महफूज ही है। जिस्मानी और अलामती औसाफ। इस्लामी रिवायात खुसूसन अहादीस और सूफी कायनाती निज़ाम में लोह महफूज की बाज़ औक़ात लफ्ज़ी और कभी अलामती वजाहत की गई है। मादा और साख्त। मुसन्निफ अब्दुल रज़्ज़ाक़ 20,860 की रिवायत के मुताबिक लोह महफूज सफ़ेद मोती की बनी हुई है और उसके सफ़हात सुर्ख याकूत के हैं। उसका कलम नूर का है और उस पर नूर के ऊपर नूर से लिखा गया है। इब्न कसीर ने अल बदाया व निहाया में जिक्र किया कि लोह महफूज को आसमान और जमीन की तख्लीक से 50,000 साल पहले तख्लीक किया गया और उस पर क़यामत तक के फैसले लिख दिए गए। हज्म और मकाम। कुछ
صوفی روایات میں ذکر ہے کہ یہ براہ راست عرش کے نیچے معلق ہے، اس کی لمبائی انسانی فہم سے ماورا ہے، جیسا کہ بعض روایات میں ابن عباس سے منقول ہے۔ صوفی مشائخ جیسے ابن عربی نے اسے علامتی طور پر بیان کرتے ہوئے اپنی فتوحات مکیہ میں کہا، اس کی لامحدود وسعت اللہ کے علم کی افق ہے، اور اس کا معلق ہونا مخلوق کے اللہ کی مشیت پر انحصار کی علامت ہے۔ لوح محفوظ قیامت کے بیانیہ میں آخرت اور قیامت کی روایات میں لوح محفوظ کو پر جلال انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ لوح کا لپیٹ دیا جانا کچھ قدیم صوفی روایات کے مطابق جب اسرافیل پہلا سور پھونکیں گے زمینی دنیا کی تقدیریں رک جائیں گی، دوسرے سور پر لوح محفوظ کے صفحات سمیٹ لیے جائیں گے، جس کا ذکر سورہ الانبیاء 21:104 میں ہے۔ جس دن ہم آسمان کو کتاب کی طرح لپیٹ دیں گے۔ امام سیوطی نے الدر المنثور میں روایات نقل کی کہ کائناتی نظام درہم برہم ہو جائے گا اور لوح محفوظ کا ظاہر کردار اپنے انجام کو پہنچے گا۔ روحانی مشاہدات اور کشفی ادب۔ متعدد اولیاء اور صوفی مشائخ نے کشف اور روحانی مکاشفے کے لمحات میں لوح محفوظ کی جھلک دیکھنے کا دعویٰ کیا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں، میں نے لوح محفوظ کو دیکھا اور اس پر میرا نام ان لوگوں میں درج تھا جنہیں اللہ نے نفس اور شیاطین پر فتح عطا فرمائی۔ ماخذ مناقب عبد القادر جیلانی از ابن حجر حتمی۔ حضرت رومی کا استعارہ مولانا جلال الدین رومی نے اپنی مثنوی میں کائناتی صحیفے کا استعارہ استعمال کیا، جو ہر روح کی اللہ کے ساتھ ازل کی ملاقات الست بربکم کا ابدی ریکارڈ ہے۔ عقل فعال ایکٹیو انٹلیکٹ۔ فلسفیوں جیسے الفارابی اور ابن سینا نے استعارہ کے طور پر لوح محفوظ کو عقل اول قرار دیا، جو کہ الہی علم کو مادی دنیا کی صورتوں میں منتقل کرنے والا واسطہ ہے۔ ابن سینا نے شفا میں اسے یوں بیان کیا، مادی دنیا میں موجود ہر چیز کی صورتوں کا ظرف، اسماء، القاب اور اوصاف کا خلاصہ۔ لوح محفوظ کو مختلف اسلامی روایات میں گناگو ناموں، خطابات اور تفسیری وضاحتوں کے ساتھ یاد کیا گیا ہے، جیسے لوح محفوظ، لوح اعظم، الکتاب، کتاب مکنون، عقل اول، کائناتی صحیفہ، تقدیر، اخلاق اور روحانی ذمہ داری کا ما بعد الطبیعی تناظر۔ لوح محفوظ پر ایمان محض عقیدہ نہیں بلکہ تقدیر، قدر، اختیار اور انسانی ذمہ داری کا ما بعد الطبیعی ڈھانچہ تشکیل دیتا ہے۔ مسلمان علماء، فلسفی اور صوفی مشائخ نے تقدیر اور انسانی ارادے کے نازک توازن پر گفتگو کی۔ لوح محفوظ کی موجودگی ان دونوں کو کیسے متاثر کرتی ہے؟ تقدیر بحیثیت علم نہ کہ جبر۔ اسلامی الہیات میں یہ نازک اور اہم فرق ہے کہ لوح محفوظ میں اللہ کا وہ علم محفوظ ہے جو لازمی طور پر پیش آئے گا، مگر یہ علم اسباب نہیں بنتا، صرف اللہ کا ابدی اور مطلق علم ان واقعات کا ریکارڈ ہے۔ امام ابو حنیفہ الفقہ الاکبر میں فرماتے ہیں، لوح محفوظ میں لکھی گئی چیز وہ ہے جو اللہ کے علم میں تھا کہ ایسا ہوگا، نہ کہ اللہ کی طرف سے مخلوق پر۔ اس سے دونوں پہلو محفوظ رہتے ہیں، اللہ کا متعلق علم اور انسانی ارادے کی آزادی، جس کا نتیجہ پہلے سے اللہ کے علم میں ہے۔ تقدیر اور اختیار کا معمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مابعد الطبیعیاتی الجھن کو صحیح بخاری حدیث 4949 میں اس وقت واضح فرمایا جب آپ سے اعمال اور تقدیر کے بارے میں سوال کیا گیا۔ عمل کرو، ہر ایک کے لیے وہی آسان کیا گیا ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ مطلب یہ کہ اگرچہ تقدیریں اللہ کے علم میں پہلے سے موجود ہیں، لیکن ہر روح اپنے اختیار سے سفر کرتی ہے۔ راستے پہلے سے معلوم ہیں مگر جبر کے بغیر۔ روحانی اخلاقیات اور تسلی۔ ایک لکھی ہوئی تقدیر کا تصور بعض کے لیے مایوسی کا باعث اور بعض کے لیے سکون قلب بن جاتا ہے، یہ انسان کی سمجھ پر منحصر ہے۔ امام غزالی اپنی احیاء علوم الدین میں لکھتے ہیں، یہ جان لینا کہ تیرا رزق، عمر اور آزمائشیں پہلے سے لکھی جا چکی ہیں، دل کو حرص اور پریشانی سے آزاد کر دیتا ہے۔ یہ پرورش کرتا ہے توکل یعنی اللہ پر بھروسہ، صبر یعنی برداشت، شکر یعنی شکر گزاری، اور ساتھ ہی ساتھ نیک اعمال کی ترغیب، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جیسا کہ صحیح بخاری حدیث 1 میں ذکر ہے۔ تصوف کا نظریہ۔ متحرک لوح۔ کچھ صوفیہ نے تقدیر کے 2 درجے بیان کیے۔ لوح محفوظ، the immutable tablet، جس میں حتمی تقدیریں درج ہیں۔
लौह महू व इस्बात, एक अदना दर्जा जिसमें तकदीरें, दुआ, सदका और अल्लाह की रहमत से तब्दील हो सकती हैं, हतमी नविश्त से पहले। इब्ने अरबी अपनी फुतुहात मक्किया में बयान करते हैं कि इस अदना लौह में दुआ मुसीबत को टाल सकती है, सदका उम्र में इजाफा कर सकता है, तौबा सजा को दूर कर सकती है, इससे पहले कि वो लौह महफूज में कतई दर्ज हो जाए। लौह महफूज जाती रूहानी अमल में एक लिखी हुई तकदीर का ईमान दिल में पैदा करता है। मुश्किल में रजा, कामयाबी में अजजी और दूसरों की तकदीरों पर शफकत, जैसा कि सैयदना अली ने फरमाया, मैंने अपने रब को अपने इरादों के टूटने से पहचाना। और ये शऊर दिल को दुनिया की वाबस्तगी से आजाद करके अल्लाह की कुर्बत और दुआ व जिक्र की तरफ ले जाता है। तसव्वुफ में लौह महफूज की तमसील रूमी ने इस्तारा इस्तेमाल करते हुए फरमाया, जिसे तुम तकदीर कहते हो वो एक कलम है जो उस सफ़े पर लिख रहा है जिस पर तुम्हारी रूह ने दुनिया से पहले रजामंदी दी थी। ये सूरह अल आराफ 7:172 में मज़कूर अज़ली अहद अलस्त बिरबिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं की तरफ इशारा है, जहां अरवाह ने अपने रब की रुबूबियत का इकरार किया और यूं अपनी लिखी हुई तकदीर को कबूल किया। आखिरी गौर व फिक्र, लौह महफूज महज कायनाती दफ्तर नहीं बल्कि अल्लाह की मशीयत, इल्म और तख्लीक के दरमियान गहरे और नाकाबिल फहम ताल्लुक की अलामत है। ये वो मकाम है जहां हर बारिश का कतरा, हर दिल की धड़कन, हर सांस, सल्तनतों का उरूज व ज़वाल, हर रूह की तकदीर और हर पत्ते के गिरने तक सब कुछ इंतहाई बारीक बीनी से तहरीर किया गया है। इस पर गौर इंसान को अल्लाह के राज के सामने आजिज़ी सिखाता है, जैसा कि सूरह अल नाम 6:59 में फरमाया, और उसके पास गैब की कुंजियां हैं जिन्हें उसके सिवा कोई नहीं जानता, और वो जानता है जो कुछ खुश्की और समुंदर में है और कोई पता नहीं गिरता मगर वो उसे जानता है, और ना जमीन की तारीकियों में कोई दाना, ना कोई तर, ना खुश्क, मगर वो सब एक वाज़ेह किताब में लिखा हुआ है। लिहाजा लौह महफूज ना तो इलाही जबर का आला है और ना मायूसी की वजह। ये अलामत है खालिक के इल्म कामिल की, इंसानी इरादे और इलाही मशीयत के दरमियान राज की, और दुआ, सदका और तौबा से बदलने वाली तकदीर की। जैसा कि अल्लाह ने सूरह तौबा 9:51 में फरमाया, कह दीजिए हमें हरगिज वही पहुंचता है जो अल्लाह ने हमारे लिए लिख रखा है, वही हमारा कारसाज है। और साथ ही सूरह अर्राद 13:11 में, बेशक अल्लाह किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो खुद अपनी हालत ना बदले। ये तवाजुन, एक गैर मुतगय्यर नविश्त और तब्दीली की कुव्वत के दरमियान इस्लामी माबादुत तबीयात, रूहानी अखलाकियात और लौह महफूज के अजली राज का कल्ब है। लौह महफूज महज इस्लामी कायनातियात का सूफियाती वर्सा नहीं बल्कि अल्लाह की मुकम्मल बादशाही का जबरदस्त ऐलान है। ये सिखाता है कि कोई वाकया इत्तेफाकिया नहीं बल्कि हर चीज उस अलीम व खबीर के इल्म व इरादे से होती है जो जाहिर व पोशीदा का जानने वाला है। ये बायसे हिबत भी है और बायसे सुकून भी। हिबत इसलिए कि ये अल्लाह की बेपाया मशीयत की गवाही है, और सुकून इसलिए कि मोमिन जानता है कि जो कुछ उसे पहुंचा वो पहले से लिखा जा चुका था और उसमें एक ऐसी हिकमत है जो सिर्फ अल्लाह ही जानता है। जैसा कि शायर इब्नुल फारिज ने कहा, जिसने अजल की लौह पर मेरी तकदीर लिखी, वो जानता था मेरा दिल क्या सह सकेगा, फिर भी मेरे लिए वही लिखा जो मेरी रूह को पेश आएगा, और उसी के इल्म में है मेरे गम का मुदावा और हर आह का मरहम। हमारी वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपको ये मवाद पसंद आया हो और आपके ईमान में इजाफा हुआ हो तो बराह करम इस वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम इल्म और मार्फत के इस सफर को मिलकर जारी रख सकें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।